So today we are doing UPSC Civil Services Exam 2022 Ethics Paper 4 case studies, and the first case is question number 7. So you can look at in your previous year question, or you can look on the screen. Our objective is to have a clear understanding of the case and then representing the same, and afterwards taking an administrative practical approach towards solving the same. So without a delay, let's start our case. Prabhat was working as vice president at Sterling Electronics, a reputed multinational company, but presently the company was passing through a difficult time. So generally, what it from here only, you have to be, your loyalty is somewhat can be tested, as sales were continuously showing downward trend in the last 2 quarters. His division, which it had been a major revenue contributor to the company's financial health, was desperately trying to procure some big government order for them. Okay, so the pressure has been created up till now, but their best effort did not yield any positive success or breakthrough. That's fine. So this is what the pressure is. Okay. His was a professional company, and his local bosses were under pressure from their London-based HO headquarters to show some positive result. So I already established that pressure has been created in this last performance review meeting taken by Executive Director India Head. He was reprimanded for his poor performance. He assured them that his division is working on a special contract for Ministry of Defence for a secret installation near Gwalior, and tender is being submitted shortly. Okay, so work is under process, and it is doesn't seem like going to go well. So let's continue. He was under extreme pressure and was deeply perturbed. Perturbed मतलब होता है disturbed. What aggravated the situation further was warning from top that if the deal is not clinched in favor of the company, his division might have to be closed and he may have to quit his lucrative job. That's even better. We have a lucrative job, so we can afford some hardship. Well, moving further, there was another dimension which was causing him deep mental torture and agony. Well, that's obvious when you are going through difficult times. This is given, and that's why the mental resilience, fortitude, these values exist. This pertained to his personal precarious financial health. Okay, he was a single earner in the family with two school college going children and his old ailing mother. Okay, like, could it have been any worse? The heavy expenditure on the education and medical was causing a big strain to his monthly pay package. Regular EMI for housing loan taken from bank was unavoidable, and any default would render him liable to several legal action. Okay. In the other backdrop, he was hoping for some miracle to happen. Miracles do not happen, only efforts pay off. There was sudden turn of event. His secretary informed that gentleman Subhas Verma wanted to see him, as he was interested in the position of manager which was to be filled by him in the company. He further brought to his notice that his CV has been received through the office of Minister of Defense. Okay, so Mr. Subhas Verma is a new character who has entered over here. So who is Mr. Subhas Verma? He was interested in him, which was to be filled by him in the company. Okay, so he's there for the position of company. Okay, during interview of the candidate Subhas Verma, he found him technically sound, resourceful, and experienced marketeer. He seemed to be very well conversant with tendering procedure and having knack of follow-up and liaising in this regard. Prabhat felt that he was better choice than the rest of candidates who were recently interviewed by him in the last few days. Okay, so there is a talent over here. Subhas Verma also indicated that he was in position of copies to be bid document for the Unique Electronic Limited would be submitted in the next day to, let's say, Defense Ministry for their tender. He offered to hand over those documents subject to his employment in the company on the suitable terms and conditions. He made it clear that in the process, Sterling Electronic Limited could outbid their rival company and get the bid and hefty Defense Ministry order. He indicated that it will be win-win situation for both him and the company. Okay, so a promising candidate offering a promising opportunity. Prabhat was absolutely stunned. It was a mixed feeling of shock and thrill. He was uncomfortable and perspiring. If you should also be cautious, because sometimes mishap like this happens. So we have to move with the caution. Okay, let's continue. If accepted, all his problem would vanish instantly, and
He may be rewarded for securing the much awaited tender and thereby boosting company's sale and financial health. He was in a fix as to further future course of action. He was wonderstruck at the guts of Subhas Verma in having surreptitiously removing his own company paper and offering to the rival company for a job. Being an experienced person, he was examining the pros and cons of the proposal situation and he asked him to come the next day. So Mr. Subhas Verma is offering somewhat mishap of basically insider information. This is what it is. Okay, removing his own company paper and offering the rival company for a job. Okay, so this is the case over here. You are under pressure and there is somewhat unfair means, and if you are aware like what this is happening, this is insider information and somewhat a betrayal by Mr. Verma in for his own company, and that should be taken into consideration with the caution. Okay, discuss the ethical issues involved. So again here it is personal gain versus loyalty, integrity. These things are being put like are being questioned over here. Mr. Verma is showing this thing, and if you accept this thing, then you are also this involved unfair means. So means and end is again a question over here, right? So these two things are quite apparent, at least to me, and if you can find anything more than that, then we'll see. So these two things are quite apparent, and you have to see if it this thing like offering is in violation of law. Is it in violation of law? Okay, so again, Competition Act may be invoked, or Companies Act might have some provision, because ultimately it is somewhat insider information leakage. You are not supposed to see other company or rivals paper at least. So this is the case over here. Critically examine option available to Prabhat in the above situation, and which of the above would be the most appropriate for Prabhat and why. So these are the question. This is typical question that we get. Option available, these like 1 to 3, we know the standard approach you take. Which would be most appropriate? So taking fair just means having belief in your hard work will rather be appreciated and know where you are supposed to, like, let's forget we don't know what is the most appropriate. So you can take the reductive approach by eliminating which you are not ought to employ. That is unfair means. This is what you are not to employ. So you may even hire that person, but you are not ought to take advantage of his rival company by taking a look in their papers. This is unfair means without a doubt. And then afterwards, your reasoning should be the answer for this question. Let's see what you write. So let's look at our answer. The first answer is the introduction of cases. The case study highlights the ethical dilemma faced by Prabhat for bringing back sales of his department on track and securing his job. Ethical dilemma of what? Of like sticking to, yeah, जो case highlights an ethical dilemma where Prabhat is faced with choice basically. बट ये भी आपने थोड़ा सा ब्रॉड और करिए, ये सिर्फ इतना केस नहीं है ना. सेकेंड हमारा इंट्रोडक्शन है कि द गिवन सिचुएशन stated about the ethical, legal and profit dilemma arises due to poor performance of company and its deteriorating financial health. अब ये भी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है. एंड ये डायग्राम अगेन आप किस लिए बना रहे हो या आप दिखा रहे हो केस को. बट अगर आपका हमेशा डायग्राम का पर्पस यार ये है, द पर्पस ऑफ डायग्राम इज टू मेक योर आंसर इफेक्टिव, टू मेक योर एक्सप्रेशन एग्जैक्ट, है ना. आप एक साथ कई चीजें देते हो, लाइक दे से अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड. तो आपका डायग्राम समवट एटलीस्ट बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें कन्वे करे. तो आप अगर ऐसे डायग्राम बनाएंगे जिसमें चीजें आप क्लियरली नहीं लिख पा रहे हो तो वो और ज्यादा एम्बिग्यूटी लाता है. तो ऐसे चीजें अवॉइड करें, और जब आप केस अगेन पढ़ रहे हैं तो ही चीजें कर लें. तो इसका आप एक गुड इंट्रोडक्शन, जब हमने कल केस पढ़ा था तो हमने देखा कि अब केस क्या हमारा दिखा रहा था कि प्रभात अंडर प्रेशर is forced to choose between, yeah, it has a dilemma of choosing the right means
versus attaining in outcome या end. On the second hand there is a Ramaswamy who is willing to. तो दो हमारे साइड्स दिखा रहा है, दोनों साइड पे तो दो लोग हैं. पूरा केस अगर आप कैप्चर करोगे तो आपको थोड़ा सा ब्रॉड केस को दिखाना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें कह देने से कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी है या आप तो ये सिचुएशन बताती है हमारा केस क्या है. हमारा केस में जो कोर 2 इशू हमने आइडेंटिफाई किया था वो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, या इंट्रोडक्शन में वो बात आएगी और आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग जाओगे वो चीज़ें. देन बिल्कुल स्टेक होल्डर, प्रभात एंड हिज फैमिली. अब ये आप एक ही साथ क्लब कर सकते हो ना, प्रभात एंड हिज फैमिली एक ही साथ डाल दो. कंपनी एंड इट्स रेपुटेशन, आपकी कंपनी की भी तो रेपुटेशन हाथ में लगी है. सुभाष वर्मा विलिंग टू, देन लॉ ऑफ द लैंड, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, है ना, तो ये भी है स्टेक होल्डर यहाँ पे. देन एथिकल इशूज, हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो पूछता है कि व्हाट आर द एथिकल इशूज. तो एथिकल इशूज आपने हेडिंग बढ़िया डाली, क्या क्या डाला है. फर्स्ट लॉ वर्सेस अनफेयर ट्रेड मीन्स. ठीक है, अनफेयर मीन्स as per it is a violation of law if any company illegally carries other company's document for personal benefit. हाँ, तो आपका वो भी है और टेंडर डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह पे है. तो आप एक बार मेक श्योर कि कंपटीशन कमीशन या कंपटीशन एक्ट में है या कंपनीज एक्ट में भी है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट. देन पर्सनल गेन वर्सेस इंटीग्रिटी. देन थर्ड भी है ना कि मीन्स वर्सेस एंड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रभात के लिए है. तो एथिकल मीन्स वर्सेस एंड्स, है ना. तो मीन्स एंड का यहाँ पे एक डिलेमा है कि क्या आप एथिकल मीन्स से आप अपना एंड अचीव करोगे या जो सुभाष वर्मा वाला है. तो मीन्स एंड का बहुत सॉलिड यहाँ पे केस बनता है, तो वो आप जरूर दिखाओगे. और सुभाष वर्मा की तरफ से है ही हैज शोन व्हाट अ प्रेफरेंस टू पर्सनल गेन ओवर प्रोफेशनल एथिक्स एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, तो ये आपके तीन बहुत सॉलिड बन गए हैं यहाँ पे एथिकल इशूज. देन क्रिटिकल एग्जामिन करना है हमें अपने ऑप्शंस को. तो ऑप्शन विल कंटिन्यू टू फॉलो द लीगल प्रोसीजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग. बहुत अच्छा आपने, है ना, लीगली साउंड जो है आप प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस. हाँ, यहाँ पे अगेन शब्द जो है ना कि ड्यू प्रोसेस, है ना, स्पिरिट ऑफ लॉ, इस तरह से थोड़ा सा आपको एक इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ कि यू हैव टू ब्रिंग दीज समवॉट, इट्स नॉट एग्जैक्टली फ्लावरी बट ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, है ना. तो वो आप धीरे धीरे एक जगह पे लिखो और प्रैक्टिस करो कि वो आपके आंसर में आने लग जाए. बट पहले बी पे जाने से पहले फर्स्ट का आंसर देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है. प्रभात कंपनी प्रॉफिट, अगेन ये एक साथ क्लब करी कभी भी. ये प्रभात एंड हिज फैमिली, एम्प्लॉय एंड प्रभात डिपार्टमेंट सुभाष वर्मा, कंपनी एंड लॉ ऑफ द लैंड. एथिकल इशूज इन्वॉल्व में इन्होंने लिखा है वैल्यूइंग, ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वैल्यूइंग पर्सनल इंटरेस्ट ओवर प्रोफेशनल इंटरेस्ट, यूजिंग confidential document to get job at another company undermines his organizational ethics. ठीक है, ये अच्छा है, आपने सुभाष वर्मा को भी लेके ऐसे दिखा दिया कि पर्सनल इंटरेस्ट ओवर प्रोफेशनल इंटरेस्ट. लॉ वर्सेस अनफेयर ट्रेड मीन्स वर्सेस एंड. ठीक है, आपने दिखा दिया, गुड. देन हमारा सेकंड था कॉम्प्रोमाइज ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. आपने एक और बात कर दी. ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑप्शन अवेलेबल विद प्रभात. अच्छा है, रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप इतना भी बड़ा दे दो तो भी अच्छा है. ऑप्शन 1 ही विल हायर सुभाष वर्मा. ठीक है, मेरिट डिमेरिट, ही विल नॉट हायर सुभाष वर्मा. ओके, इसके मेरिट प्रभात विल चूज ऑप्शन 2 बिकॉज दिस दैट. ओके, सी पार्ट हमारा था कि व्हाट ऑप्शन विल यू चूज. ओके, इन्होंने क्या लिखा है. ऑप्शन 1 विल कंटिन्यू टू फॉलो, देन मेरिट डीमेरिट, ऑप्शन विल एक्सेप्ट प्रपोजल ऑफ सुभाष वर्मा, इसके मेरिट एंड डीमेरिट. ऑप्शन 3 विल रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एंड एस्केप. अब ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये वाला है ना, ऑप्शन ये रिजाइन नहीं है आप एट मोस्ट, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वुड नॉट अलाउ दिस. ओनली थिंग यू कैन सी कि स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अदर जगह पे, अलग जगह पे आप जॉब सीख कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द ऑप्शन लाइक यू हैव एट हैंड राइट नाउ. योर हैंड्स आर टाइड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑप्शन. ठीक है, फिर प्रभात विल गो विद द ऑप्शन बिकॉज. अब देखो इसमें बेहतर ऑप्शन जो है प्रैक्टिकली बताऊं तो व्हाट आई सी इज कि एस वी सुभाष वर्मा इज क्वाइट कॉम्पिटेंट. यू नीड दिस पर्सन राइट नाउ. ही इज ब्रिंगिंग द डॉक्यूमेंट. ठीक है,
मे बी ही इज अ विक्टिम ऑफ वट एवर दैट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज, तो ये अपने को इंश्योर करने के लिए चीजें कर रहा है. Now you can, like, it though it may not seem that much in interest of ethics, but practically if he is meritorious and ये चीज लेके आ रहा है तो आप इसको मना कर सकते हो. One option is that you can say no to take any such document which is against the law, which is unethical. ठीक है. But if he is competent and he improves your chances of getting that tender, then you will, and you are ought to do for a given situation your time being है, you are ought to improve your case even by bit. तो अगर ये है तो this is how I see it. बाकी हम देखते हैं इन लोगों ने क्या आंसर लिखे हैं. So we would not allow the dismerit of this option. ठीक है. And while we'll go with the rather एथिकल मीन्स अप्लाई करते हुए अपने हम कॉन्ट्रैक्ट पे अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा करेंगे, अपने एफिशिएंसी पे, अपने अपने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जो हम टेंडर भर रहे हैं, उसको हम प्रमोट करेंगे विद ड्यू प्रोसेस. तो इनके मेरिट डिमेरिट क्या लिखा है इन्होंने कि कंटिन्यू फॉलो विल अपहेल्ड द लॉ एंड लीगल मैंडेट. ठीक है. तो ये चीज़ है कि इसको अगेन आपने फिर से अडॉप्ट नहीं किया है, प्लीज पीडीएफ पढ़िए और जब रीजन दे रहे हो तो हाँ ठीक है ये आ रहा है तो सीधे सीधे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन इज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है. ये भी चल जाएगा, बट अगेन आप और अच्छी चीजें लिख सकते हो जो कि कंपेलिंग है. एक आर्गुमेंट होता है लाइक दैट्स कंपेलिंग, तो वो और उसके साथ ये लिखते तब बहुत अच्छी बात आती. विल नॉट कॉम्प्रोमाइज द इंटीग्रिटी ओवर पार्ट टाइम, जो भी आपने लिखा है डिओंटो. अब ऐसे शॉर्ट में मत लिखिए कि डिओंटो ड्यूटी. ठीक है. तो ये हो गया. आपने और क्या लिखा है डिसमेरिट में? मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो एक और चीज़ है, यहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आप व्यू नहीं ले रहे हो. एक क्या आप शॉर्ट टर्म में तुम यू माइट गेन, बट देयर इज अगेन वैसे डीमेरिट है कि यू माइट गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट बट इट कैन बी हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म. मिसिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट विच विल इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ. अब इतने बड़े बड़े अगर आप डीमेरिट लिखने लगोगे ना तो यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट पेपर. इतने बड़े नहीं, सिंपल शॉर्ट कि माइट नॉट गेट द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. chances of losing job will be higher. हाँ, higher probability of losing the job will increase. probability of losing job may increase. ठीक है. ऑप्शन 2 will accept the proposal of सुभाष वर्मा merit will help in saving one's own job. तो सबसे पहले अगेन कॉन्ट्रैक्ट सेव करोगे, टेंडर जो है यू मे सेव द टेंडर एंड हेंस द जॉब. तो एक ही साथ क्लब हो गया. तो बेनिफिट्स और ये सब चीज़ों को एक साथ क्लब करने की प्रैक्टिस करिए. जो उस टाइम पे भी बताया था कि आप जो है ना 3 अप्रोच जो आते हैं कि आप क्या क्या जो है इंश्योर करोगे, आप प्रोटेक्ट वे है ना. तो एक ही साथ 2-3 चीजें हुई कि आपने टेंडर भी सिक्योर कर लिया, जॉब भी सिक्योर कर ली. तो इस तरीके से क्लब करिए, नहीं तो आपकी कई चीजें छूट जाएंगी. एंड टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा लगता है भैया. केस स्टडीज में सबसे ज्यादा लोगों का पेपर छूटा है एथिक्स पेपर 4 में, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है. तो क्लब दिस थिंग्स, अदरवाइज यू वॉन्ट बी कंप्लीटिंग योर जीएस पेपर 4. विल हेल्प इन इंप्रूविंग फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी आफ्टर गेटिंग. अब देखो वही चीज आपने वही चीज कहती ना कि अगेन एक ही साथ यहीं पे कर देते, क्लब करोगे तो आ जाएंगी ना चीजें. विल लीड टू ईज ऑफ मेंटल प्रेशर ऑफ जॉब कंपनी एंड. ठीक है. ये अभी टेलोज नहीं है. टेलो मतलब होता है वह कि द वन हु डिजर्व द बेस्ट गेट्स द बेस्ट. दैट इज टेलोलॉजी, टेलियोलॉजी या टेलोज ऑफ अ पर्सन ऑफ अ वर्च्यू. ठीक है. डीमेरिट आपने क्या लिखा है? कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी, इनफॉर्टिट्यूड एंड ओरिएंटेशन. तो देखो इसको कैसे आप कह सकते हो, है ना. You can say this approach shows end-oriented thinking and compromises integrity and fortitude. So आप इसी चीज को एक ब्यूटीफुल वे में एक अच्छे तरीके से लिख सकते हो. तो वो बिल्कुल विद लाइक आप प्रैक्टिस करिए कि आपके विद टाइम आपको आ जाए. विल टू अपहोल्ड द लॉ एंड इट्स लीगल मैंडेट टू बी वायलेटेड बाय अनफेयर. अगेन आप देखो रिपीटिशन कर रहे हो, है ना. तो ये चीजें नहीं. शॉर्ट एंड क्रिस्प, इफेक्टिव, ये 3 चीजें हो तो बेहतर है. एंटायर कंपनी विल बी एट रिस्क ऑफ फेसिंग लीगल एक्शन अंडर. तो यही आप ये जो आप कह रहे हो ना, तो इन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की जो मैं बात कर रहा था वो आपने यहाँ पे फाइनली बात कही है. तो ये लॉन्ग टर्म आप दिखाता है. एंड हमेशा केस स्टडीज में ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप इमीडिएटली क्या एक्शन लोगे, शॉर्ट टर्म में क्या एक्शन लोगे एंड लॉन्ग टर्म में क्या एक्शन लोगे. ये बहुत जरूरी है कि आप ये मेच्योरिटी के साथ काम करो, इन चीज़ों को रीड करो. कई बार
आप एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि आप होम लोन वेवर लो, है ना. वी नो दिस इज हार्मफुल इन लॉन्ग रन, बट गिवन द इमीडिएट सिचुएशन एंड स्ट्रेस वी एजॉर्ट टू फॉर्म लोन वेवर्स. ठीक है, तो वैसे ही आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन दोगे तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड. ऑप्शन 3 विल रिजाइन, नहीं, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है. ईज ऑफ मेंटल नहीं हो सकता है ना, अगेन आप केस में कुछ चीज़ें मिस कर दी हो. योर फाइनेंशियल हेल्थ डज नॉट अलाउ यू टू, जो हमने स्टार्टिंग में हैफ्टी सैलरी तो थी, बट हमारे एक्सपेंडिचर हैफ्टियर थे, है ना. तो वो चीज़ से ये बाइंड हो जाता है. एंड इसको अगेन ये ऐसे मत छोड़ दीजिए भाई, इसको पार्ट है ना, तो पार्ट्स को ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए अच्छे से, कि आप एग्जामिनर चाह के भी उसको मिस ना कर पाए. ठीक है, तो आप उसको बॉक्स में डालिए या जो भी करिए, यू कैन नॉट प्ले विद दिस थिंग. इसको मैं प्ले ही बोलूंगा, कि आप खासतौर पे, क्योंकि एक छोटी सी आपको लगेगी कि हैबिट है, बट समटाइम्स पीपल डू मिस आउट. ठीक है, तो हमेशा इसको पार्ट्स को अपना ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू पोजीशन और जो ये चीज़ चाहिए वो दीजिए. ठीक है, ये आपकी छोटी हैबिट है, बट समटाइम्स यू फॉरगेट एंड लूज 1 or 2 मार्क फॉर जस्ट क्योंकि एग्जामिनर ने सही से देखा नहीं. दिस ऑप्शन सेव हिम. ओके, पहले इनका देखते हैं भाई कि इन्होंने क्या क्या मेरिट और डीमेरिट लिखे हैं. तो फर्स्ट, ही विल हायर सुभाष वर्मा. मेरिट क्या है? ही कैन गेट, हाँ, विल नहीं, बिल्कुल विल सर्टेनिटी दिखाता है. तो आप अगेन बात करोगे कि विद द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. विल इंप्रूव फाइनेंशियल हेल्थ. अगेन क्लब करने वाली जो बात कही ना, यहाँ पे आप एक साथ क्लब करिए चीज़ों को. सुभाष इज टेक्निकली साउंड, रीजनेबल एंड मार्केट. हाँ, तो ये जो मैंने आपको अपना सॉल्यूशन दिया था, दैट इज बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली, क्योंकि केस जो है साफ साफ एलिसिट कर रहा है कि ही इज बेटर देन ऑल द अदर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर इट. ऑल्सो कैन सिक्योर हिज जॉब एंड मेंटेन फाइनेंशियल हेल्थ फॉर कंपनी. ठीक है. प्रभात इज सकम्बिंग अंडर प्रेशर एंड पर्सनल गेन. बिल्कुल, ये होता है एक एग्जैक्ट कि दिस सोर्स सकम्बिंग टू प्रेशर एंड पर्सनल गेन. सुभाष लैक पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल एथिक्स. तो हाँ, आप ये पर्सनल तो नहीं कह सकते, प्रोफेशनल एथिक्स की कमी दिख रही है. दैट कैन बी सम वॉट ट्रेंड. आपको एग्जाम्पल की तरह आप इसी को अगर जैसे मेरा ऑप्शन में पिक करता तो मैं यही बात कहता है कि इसमें जो है प्रोफेशनल एथिक्स की जरूरत है. तो यू कैन प्रोवाइड अ मेंटरिंग टू अ टैलेंट. दिस ऑल्सो शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन ऑफ प्रभात ऑन हिज वर्क एंड टीम. ठीक है, हाँ, कि एक रिफ्लेक्ट करता है कि रिफ्लेक्ट्स देयर ओन वर्क इन पुअर लाइट रादर देन. तो आप ये बिल्कुल हाँ अप्लाई होता है. ही विल नॉट हैव सुभाष वर्मा. मेरिट क्या है इसके? विल हेल्प हिम टू अपहोल्ड द लॉ. नहीं, आप हायर करके भी लॉ अपहोल्ड कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको हायर करके भी अपने गेटिंग जो टेंडर की प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाते हुए भी यू कुड अपहोल्ड द लॉ एंड यू कैन माइट हैव दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस पर्सन एंड उसके एथिक्स को आप सुधारने की कोशिश करोगे. तो मेरे हिसाब से तो बेहतर आंसर है, बट इसमें कई वेरिएशन होते हैं. यू शुड फॉलो योर ओन एथिक्स, व्हाट मेक्स लाइक मोर सेंस वो आप यहाँ पे चेक करो, वो हम देख के वी कैन सी दैट. दिस शो हिज कन्विक्शन टू ऑब्जर्व रूल एंड. ठीक है, शोज हिज कॉन्फिडेंस. अगेन क्लब करने की जरूरत है ना, कई चीजें आपका एक साथ दिखा रहा है. दिस शोज दिस, तो आप ये करो, ऐसे ये अप्रोच करो, नहीं तो पेपर छूटना तय है. नहीं है कुछ होगा तो अभी लास्ट में ना हम जब करेंगे फुल पेपर, देन यू विल गेट टू रियलाइज कि कैसे 3 की जगह 3.5 घंटा लोग ले लेते हैं. अगर सही से आप पेपर कंप्लीट करोगे, नहीं तो आपका बड़े आराम से 20 से 25 नंबर का छूटना तय है. तो वो हमें रिस्क नहीं लेना है. ठीक है. डीमेरिट में नॉट गेट टेंडर, कैन लूज हिज जॉब विच. ठीक है, अगेन मे नॉट की जगह पे ना कि लेसर चांसेस है, नहीं कि हमको मिलेगा ही नहीं, है ना. तो हम हमेशा भी क्या, अभी ये प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि आपके चांसेस कम हो सकते हैं. आप जो देख रहे हो ना, एक यही है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी. तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि दैट वुड डिक्लाइन. क्यों? क्योंकि अगेन आपका एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव, एक अच्छा प्रेजेंटेटर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दैट हैज लोअर चांसेस. कैन लूज हिज जॉब विच कैन क्रिएट हार्म. सो अगेन ये परकुलेटिंग है चीज़ें, ये नहीं होगा तो ये आ जाएंगे, फिर ये समस्याएं जो है विल come into the forefront. नेक्स्ट हमारा है सुभाष विल चूज ऑप्शन 2 बिकॉज. अब यही है ना कि आपने दोनों में से उठाए नहीं चीज़ें, इसके प्रॉफिट थे, इसके नुकसान थे. सोचिए आप क्या करना था, यहाँ से जो प्रॉफिट था वो लेना था और ये नुकसान को कट ऑफ करना था. Choose this option will save him involving unfair practice, illegal source ability, perceive his value even pressure, he is experienced employee. आपने ठीक है उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, बट बी द जज ऑफ दिस थिंग. ओके, बी योर सेल्फ in that position and see at a given time which of like आपने अगर दोनों नहीं मिलाया है तो you won't be able to
हैव दिस पॉजिटिव आउटलुक। हमारा क्या दिखा रहा है, जब हम ये दिखा रहे हैं एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट को ऐसे डिफेंड कर सकता हूँ कि इट shows a positive outlook, it provides a chance for correction for SV Subhas Verma, it ensures that our contract या tender is being taken up, ठीक है, it in like हमारा जो सिचुएशन है, प्रेशर है, उसको एलिविएट कर रहा है। तो इट हैज ऑल द पॉजिटिव एंड ओनली नेगेटिव दैट दिस पर्सन आफ्टर योर मेंटरिंग या आफ्टर योर इंटरवेंशन माइट स्टिल बी दैट काइंड, तो यू कैन लेटर ऑन ड्रॉप हिम। दैट्स द ओनली डिमेरिट, बाकी तो सारे मेरिट मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए इस ऑप्शन से। So please do see these possibility that do exist. Don't like just हाथ पकड़ के वाली चीज नहीं है, practical and effective solution अगर आपको देना है तो you'll have to crisscross your own thinking and see what is best for your company, and sometimes you have to make such like choices. Okay, there is a will to, ठीक है, प्रोसीजर इसमें भी तो वही सारी चीजें आपको दिख रही ना कि will to ये है, मतलब सारे जो भी आप कह रहे हो ना वो सारे इसमें आ जाएंगे पॉजिटिव्स। बट एक बार देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है भाई, इतने बड़े बड़े नहीं देना है। विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटीग्रिटी फोर्टिट्यूड फॉर, अगेन आप जो एक पहली बात कह चुके हो उसी को दोहरा रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी अच्छी चीजें बढ़ाएगा। लॉ आप कर रहे हो तो भी आपकी इंटीग्रिटी तो बढ़ा रहा है, और जो है फेयर मीन्स आप मीन्स को मीन्स एथिक्स इंटीग्रिटी इन सबको इंश्योर करेगा। एक बात में क्लब करो भाई, प्रमोटिंग फेयर मीन्स प्रैक्टिसेस डिस्करेजिंग पर्सन सुभाष। अब देखो यही चीज है ना कि आप इस तरह से अप्रोच नहीं उठाओगे तो आप एक ही चीज को 3 जगह पे 3 पॉइंट में लिखोगे। हमने एक चीज में क्या इंश्योर कर लिया कि हमारा एथिकल स्टैंडर्ड, लीगल मैंडेट, इंटीग्रिटी, फोर्टिट्यूड, सारी चीजें पॉजिटिव चीजें, मतलब वैल्यूज एंड लॉ इज अपहेल्ड कर लिया। दूसरे में क्या हमने इंश्योर कर लिया, हमारा कंपनी के लिए जो है हाईएस्ट जो प्रोबेबिलिटी हम एश्योर कर सकते हैं इन लीगल और एथिकल मीन्स, वो हमने सेकंड पॉइंट ही हम मैं रीजनिंग देता है ना, वो हमने इंश्योर कर ली। तीसरा एक और कि वी हैव इंश्योर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड कैंडिडेट सुभाष वर्मा कोर्स ऑफ रिकरेक्शन। तो इसके पॉजिटिव आप देख लो, अभी चीजें नहीं आएंगी इन आंसर्स में, ठीक है। प्रमोटिंग फेयर मीन्स ये बात कर रहे हो है ना, तो ये वैरायटी कम हो जाती है जब आप ऐसे ऑप्शंस के साथ जाते हो, तो यू डोंट हैव मच थिंग टू राइट। आप वही 2 ही 3 चीजें जो है ना प्रोवाइड या प्रोटेक्ट को ही, एक क्या है, अब देखो मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा। आप इसको एक पॉइंट कह दोगे कि हम इंटीग्रिटी बचा लेंगे, हम एथिकल मीन्स कवर करेंगे, हम लॉ कवर करेंगे। आपने यही तो 3 पॉइंट किया है, बट ऑल दे आर डूइंग इज लाइक यू विल अपहोल्ड द राइट थिंग, यू विल डू द राइट थिंग, यही तो दिखा रहा है, ठीक है। 10 और इसमें प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? दिस इज प्योर थियोरेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स, बट एक्चुअली में होगा तो एनीवन कैन सी कि हाँ भैया ऐसा, इट्स नॉट दैट मच ऑफ इम्प्रेसिव। तो ये चीज आप ध्यान दें, और ऐसी चीजें आंसर लिखेंगे तो यू विल गेट बेटर मार्क। आई हैव गॉट बेटर मार्क, एंड जिनको मैंने बताया है दे हैव क्रॉस्ड 110, 17 जो लीस्ट था वो रहा है। तो दिस इज द वे एंड यू कैन योर सेल्फ जज दैट। सो ये आज के सेशन के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, आप एक देख पाओ जो प्रैक्टिकल साइड में हमेशा बात करता हूँ, एंड धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाएगी। सो कीप ऑन वर्किंग, बिलीव इन द प्रोसेस, प्रोसेस इज द वे, ठीक है, ये प्रोसेस ही आपको जो है लेके जाएगा। सो कीप ऑन डूइंग इट, यू आर वेरी मच क्लोज। ओके।